Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Just give me 1 minute. Hare Krishna. So today we are going to begin the 11th chapter of Bhagavad Gita. भगवद गीता का 11वें अध्याय हम आज प्रारंभ करने वाले हैं. एंड एज इज यूजुअल आज हम 11वें अध्याय का अवलोकन करेंगे. We will be doing an overview of the 11th chapter. Last class we did an overview of Bhagavad Gita. It was the 11th session. We have done 11 overview sessions of Bhagavad Gita generally. और हर अध्याय का भी हमने अवलोकन किया है. So we start off from where chapter 10 ended. वहां से शुरू करेंगे जहां पे अध्याय 10 को समाप्त किया था. कृष्ण भगवान ने क्या कह के उन्होंने समाप्त किया था. कृष्णा ends 10th chapter saying, with a single fragment of myself I pervade and support the entire universe. तो Visthabhyaham idam Krishna. Krishna is telling, I am pervading everywhere. All the universes are supported by Ekamshena Sthito Jagat. So, Ekamshena, on one speck of my splendor, Eka Amsha, entire universes are getting supported. So you can imagine how powerful Krishna is. कृष्णा का शक्ति के बारे में हमें मतलब we will never be able to estimate, because Krishna is aprameya, and Krishna's energies, Krishna's opulences are also aprameya. अप्रमेय का मतलब क्या है? जो चीज जिसका हम माप नहीं कर सकते, that which cannot be measured. So that is called aprameya. And in the 11th chapter also, we are going to talk of the universal form, which is described by Krishna himself as aprameya. That means there is no end to it. It is infinite, the universal form. So one question was asked, Prabhuji, is it the same universal form that was shown to Duryodhana? क्या वही विश्व रूप है जो दुर्योधन को सभा में दर्शन हुआ था? No. It is what was shown to Duryodhana was a partial universal form. पूरा उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि वैसे भी दुर्योधन उसको मानने वाला नहीं था. कृष्णा knows, कृष्णा is sitting in everybody's heart. कृष्णा हरे के हृदय में बैठे परमात्मा है, तो उनको मालूम था मैं जो भी दिखाऊंगा ये बंदा तो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, तो मैं सैंपल दिखाऊंगा. वैसे अर्जुन को भी सैंपल ही दिखाया. Not that he showed everything, because it is infinite. How much can Arjuna see? To facilitate his sight, Krishna gave Arjuna a special vision. So he gave him a Divya Chakshusha. So we'll continue further. We'll come to that point. So 10वें अध्याय को कहाँ पे उन्होंने समाप्त किया? मेरे एक अंश से मैं सारे ब्रह्मांड का आधार बन के बैठा हूँ. So then, now Arjuna wishes to see that all pervasive form of the Lord. तो अर्जुन को अभी लालच हुआ कि मैं उस यूनिवर्सल फॉर्म को, मैं उस विश्व रूप को देखना चाहता हूँ. And he requested him. In the first 8 shlokas, we have a conversation between Arjuna and Krishna. अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद हुआ है, और अर्जुन ने
मतलब रिक्वेस्ट किया है कि आप आपका ऑल परवेडिंग फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म मुझे कृपा करके दिखाइए। और कृष्णा agrees and he makes the preliminary arrangements for his bhakta to see. What are the arrangements he will make? We will come to. So 11वें अध्याय 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। For better comprehension, we can divide chapter 11 into 5 sections. So section 1 starts from shloka number 1 and ends at shloka number 8. श्लोका 1 से श्लोका 8 तक पहला विभाग है। इस विभाग में हम क्या सीखेंगे? अर्जुनास रिक्वेस्ट, अर्जुन ने क्या दरख्वास्त किया भगवान से, और कृष्णा डिस्क्राइब्स हिज यूनिवर्सल फॉर्म, मतलब कृष्णा बता रहे, कृष्णा उनको दिखाने वाले हैं और दिखाने से पहले वो अपना वर्णन कर रहे हैं। तो पहले वो सुन रहा है, अर्जुना इज गेटिंग प्रिपेयर्ड बाय हियरिंग। सो दिस इज हाउ spiritual matters must be understood. First we must see with the ears. जी आपने सही सुना, पहले हमने कर्ण के माध्यम से देखना चाहिए, तत्पश्चात कृष्णा ने उनको दर्शाया। अब आप अपने आंखों से देखिए, और अपने आंखों से क्या, उनको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। क्या मॉडिफिकेशन है हम सीखेंगे। सेकेंड सेक्शन, इट्स अ क्वाइट लॉन्ग सेक्शन, स्टार्ट्स फ्रॉम श्लोका नंबर 9 ends at श्लोका नंबर 31। श्लोका 9 से 31 श्लोका। तो उसमें क्या हम सीखेंगे? संजय डिस्क्राइब्स अर्जुना's एक्शन, अर्जुना's विजन। तो इस सेक्शन में संजय वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन देख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी वर्जन इज कमिंग। व्हाट अर्जुना इज सीइंग इज आल्सो बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय संजय। So what does this mean? This means that even Sanjaya was blessed to see the universal form. किसने ब्लेस किया? अर्जुन को तो कृष्णा ने ब्लेस किया, दिव्य चक्षुष दिया। तो संजय को किसने दिया? संजय को कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही उनका आध्यात्मिक गुरु व्यास देव जी ने उनको दिव्य चक्षुष दिया। वो कहीं दूर बैठ के धृतराष्ट्र के साथ वो पूरा युद्ध देख पाए और उसका वर्णन कर पाए धृतराष्ट्र को, जो जन्मांध था और वो युद्ध में भाग नहीं ले रहा था। सो इन द सेक्शन 3, which is a smaller section, it deals with श्लोका नंबर 32 to 34, 32वें श्लोका से 34वें श्लोका। इसमें क्या हम सीखेंगे? कृष्णा बता रहे, टाइम आई एम, मैं काल हूं, बिकॉज एंड बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, मैं काल हूं, मैं कराल काल हूं, और आप मेरे निमित्त बन जाओ। Krishna is trying to say something here, that everything that happens by the pre-plan of the Lord. Whatever happens in the end, in all our lives, it's already pre-planned by Krishna. He will start making adjustments according to our decisions, according to our habits, according to our tendencies. So time I am become my instrument. भव सव्य साची, भव निमित्त मात्र भव सव्य साची, आप मेरे निमित्त बन जाओ। वैसे इस युद्ध का परिणाम क्या होगा मैंने पूर्व निश्चित कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, बस आप इसमें भाग लीजिए और उसका श्रेय आप लीजिए। सो विल कम टू दैट पॉइंट अगेन। सेक्शन 4, 35 to 46, सो 35 से 46 तक। So here Arjuna starts praying to the Lord. So Arjuna is praying to the Lord now out of fear. ये जो प्रार्थना है, अर्जुन को अभी अर्जुन अभी भयभीत हो गया। अर्जुन got into fear after seeing the Karala Rupa, the universal form, which is very ferocious to see, because there are many elements involved in that, and he could see the different warriors entering the mouths of the universal form, and they are being crushed under the teeth of the universal form. So very, it was, you can say that it was a very gory scene. So Arjuna was enveloped in fear. अर्जुन को भय हुआ
और उन्होंने फिर क्या रिक्वेस्ट किया? सो बिटवीन श्लोका नंबर 47 to 55, तो 47 से 55 तक, तो इस अध्याय में 55 श्लोका है। और सेक्शन 5, द लास्ट सेक्शन, डील्स विद हाउ ओनली प्योर डिवोटीज सी कृष्णास टू आर्म्ड फॉर्म। तो कौन देख सकता है भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूपा, मुरलीधर रूपा? कौन देख सकता है चतुर्भुज रूपा? कौन देख सकता है विश्व रूपा? इसका वर्णन दिया गया है। तो द टॉप मोस्ट vision is the vision of the Lord as Shama Sundara, and for that there is a qualification required. What is that qualification? Pure devotional service. केवल शुद्ध भक्त भगवान को द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर त्रिभंगी इस रूप में वो देख सकते हैं, वृंदावन लीला में वो भाग ले सकते हैं। So one can understand the Lord's nature only through the mercy of the Lord. तो भगवान के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, वो भगवान की कृपा से ही होगा। We cannot know the Lord by any other means. Never it is possible by our own efforts. अपने ही प्रयत्न से कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा। प्रयत्न तो फिर क्या प्रयत्न ना करें? नहीं, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने के बाद कृपा की वजह से हमें जो भी वरदान मिलेगा, जो भी फैसिलिटी मिलेगा कृष्णा से, हमें स्वीकार करना है। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध तो छेड़ चुका है और युद्ध का परिणाम भी कृष्ण ने पूर्व निर्धारित कर दिया है। इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हु इज गोइंग टू विन द वॉर, हु इज गोइंग टू सर्वाइव एंड हु इज गोइंग टू डाई। ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड। अच्छा, देन व्हाट इज द रोल ऑफ अर्जुना? दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। Even if you do not fight this war, what has to happen will happen. So this is the answer for questions people ask. सब कुछ कर्मा के ऊपर है, सब कुछ भगवान के दया के ऊपर है, तो हमारे हाथ में क्या है? तो अर्जुन के हाथ में क्या था? गांडीवा, फिर तीर था, फिर उनका नॉलेज और स्किल था, तो उनको वो अप्लाई करना था। वो भगवान खुद बोल रहे हैं। तो इफ अर्जुना डज नॉट फाइट द वॉर, the war will end as it should have ended, with the victory on the Pandavas side, because Krishna has already decided it. But because Arjuna is going to fight, he is going to get the credit. He is going to get all the other facilities because of the share of credit that he must get. And he must be satisfied with his share. Tena tyaktena bunjita. It's not that you must grab others' share. तो वो चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। तो क्या, तो फिर ये भी तो चोरी ही तो कर रहे हैं, ये भी डकैती कर रहे हैं। दुर्योधन राज्यभार संभाल रहे हैं, तो वो तो मतलब हड़पने चाहते हैं। नो, दुर्योधन युधिष्ठिर के हक में जो था राज्य, उसका अनैतिक रीति से कब्जा करके बैठा है। इन अ वेरी इनजस्ट वे, दुर्योधना इज होल्डिंग ऑन टू पावर। एज पर द प्रीवियस अग्रीमेंट, Yudhishthira had to get back the entire kingdom. The entire kingdom was Yudhishthira's. But then, during the Shanti Samvada, which Krishna mercifully took the role of, he first asked for half the kingdom. Then he went on negotiating, came up to the point where he asked for 5 villages in different directions, strategically. तो कृष्णा को पता था ये 5 गांव मिलेंगे, हर एक पांडव अपना आडलित वहां पे एस्टैब्लिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट समृद्ध राज्य, समृद्ध राष्ट्र होगा, बिकॉज द पांडवास हैव गॉट द पावर टू रूल justly, and he knew that all other kings would go and surrender to them, because कौन नहीं चाहता कि युधिष्ठिर महाराज पांडवों जैसा राजा के अंडर वो काम करे, तो सारे सामंत राज्य बन जाते हैं। तो ये दुर्योधन भी जानता था। दुर्योधन जानता था कि कृष्णा 5 गांव तो मांग रहा है, लेकिन बाद में वो क्या करवाएगा कृष्णा को, दुर्योधन को पता। So he held on to the power illegally, in an inappropriate way. So because of which he even went to the extent of saying, I will not give that much piece of land which can hold the tip of a needle. उतना मतलब very bold statement and very unreasonable.
उतना भी भूमि मैं दूंगा नहीं पांडवा को जिसमें सुई का मोन जो बोलते हैं वो ठहरा सके उसमें। सो टू दिस एक्सटेंट इवन इट सेड अगर इनको राज्य वापस चाहिए तो युद्ध तो करना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट Duryodhana. What he had done in the Vanavas period of Pandavas, he had applied extreme diplomacy. तो राजनीति और कूटनीति दोनों को अप्लाई करके वो अनेक राज्य में अनेक राजाओं के साथ समझौता कर चुका था, मित्रता बढ़ाया था। So this is like a PR exercise. He knew that he had about 13-14 years before which he knew everybody likes Pandavas because of the righteous nature, and nobody actually likes him except the demoniac kings. राक्षसी प्रवृत्ति के राजा केवल उनके दोस्त थे, या फिर जो बंधे हुए हैं वो उनके साइड में थे, कर्णा दब गए थे उनके एहसान के बोझ के तले। बट इट इज रॉन्ग, because Krishna says during the battle and before the battle that इसी से हमें इतना भी किसी का इतना भी मोहताज नहीं होना चाहिए कि अधर्म में उनका साथ देना पड़े। एंड इवन इफ somebody has given favors, even if somebody has done favors, अगर वो अधर्म कर रहा है, we need not support it, we need not be a part of it, we can withdraw it, we can say that no, we are not going to support it। लेकिन ये जो मिस्टेक है कर्ण ने किया, जो कौरवों के साइड में थे बहुतेक लोग ने यही मिस्टेक किया कि हम राजा का अन्न खा चुके हैं। भीष्मा, द्रोणा, कृतवर्मा, many this one Kripacharya, they're all subjugated under so-called moral principles which Krishna did not approve, because Krishna said moral principles are valid when morality is in vogue। तो धर्म का जो रूल्स हैं वो तब लागू होगा जब धर्म चल रहा है। जब अधर्म चल रहा है तो धर्मी को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, irrespective of whoever it is। जैसे कि imagine in the police department there is an inspector and the inspector is going to a scene of crime and there he finds that his father is the criminal। तो अगर वो अभी कानून की दृष्टि से नहीं देखेगा और वो ये देखेगा कि ये तो मेरे पिता हैं, अब इनको तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये संबंध वाले ये जो रिलेशन है वो लेके आएंगे, तो देन ही विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस टू हिज प्रोफेशन। So he must act as a police inspector and he must treat his father as the criminal। This is the principle। That's what Krishna kept saying to these Diggajas, especially Bhishma and Drona, and also Karna. To a certain extent, he tried to convince, but unfortunately, they were not to be convinced। Krishna is giving a chance for everyone for rectifying themselves। ऐसा नहीं है कि कृष्णा ने ये सोचा कि ये सब तो अधर्मी हैं, इनको तो मरना ही उचित है। उनको सबको मौका दिया, सबको अपना गलती सुधारने का कृष्णा ने मौका दिया, लेकिन दुरादृष्टवश they were not able to comply with the supreme lord's instruction। तो जब बुद्धि नष्ट हो जाता है, भगवान भी आके हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो प्रवेश नहीं करेगा। So we will end up doing wrong things only। That is when we are siding with the wrong people, associating with wrong people। So the power of association, very important, with whom we associate with। So one can understand the Lord's nature only through the mercy of the Lord। तो ये मुझे कंक्लूड करना था इस डिस्कशन, अब तक के डिस्कशन का, कि भगवान के दया के बिना भगवान को भी हम नहीं जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को जानने के बाद हम भक्ति करेंगे, भगवान को जानने के लिए भक्ति करना है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे भगवान को नहीं जान पाएंगे, बिकॉज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, एक मेजर रिक्वायरमेंट है भक्ति। और अगर भक्ति में हम
डूब नहीं जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा. कृष्णा विल नॉट गिव दैट सिचुएशन एट ऑल. तो अर्जुना, सो सेक्शन 1 में जस्ट क्विक रिकैप, वन लाइनर रिकैप. सेक्शन 1 में हम क्या सीखेंगे? अर्जुना रिक्वेस्ट टू शो द यूनिवर्सल फॉर्म. पहले 8 श्लोकों में ये तय हो जाएगा कि कृष्णा अर्जुन का रिक्वेस्ट के मुताबिक उनको विश्व रूप दर्शन कराएंगे. दूसरा, सेकंड सेक्शन में अर्जुन आस्क व्हाट इज योर मिशन, हु आर यू. देखिए, विश्व रूप को देखिए वो मतलब बिविल्डर हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कौन है वो. कृष्णा है, तो कृष्ण से ही तो वो मांग रहा है आप विश्व रूप का दर्शन कराइए. लेकिन इतना भ्रांति हो गया उसको उस रूप को देख के, भय के कारण वो पूछ रहा है व्हाट इज योर मिशन. आपका यहाँ प्रकाश होना, प्रकट होना क्या मकसद है, क्यों आप प्रकट हुए हैं और आप कौन हो? इज आस्किंग. It happens, no? Sometimes when there is memory loss due to fear or due to an incident, then we forget our own relatives, father, mother, wife, and we end up asking, "Who are you?" मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया. बहुत सारे मूवीज में आपने ये सीन देखा होगा. तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि कृष्णा आस्क्स अर्जुना टू बिकम हिज इंस्ट्रूमेंट. तो निमित्त मात्र भव सव्यसाचिनी, इज टेलिंग इट टू ऑल ऑफ अस. तो हमको क्या करना है? निमित्त मात्री, निमित्त मात्रा. वी मस्ट बिकम इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट इन व्हाट? In the spread of the glories of the Krishna consciousness movement. That's the only business that we should have. But प्रभु जी, हम तो गृहस्थ लोग हैं, फंसे हुए हैं. हाँ ठीक है, फंसे हुए हैं, बट धीरे धीरे हम निर्ग्रंथा हो सकते हैं. ग्रंथा इज बॉन्डेड. तो निर्ग्रंथा कैसे होना है? भाई नित्यम भागवत सेवया. 2 भागवत है, एक तो पुरुष भागवत, पर्सन भागवत, और एक पुस्तक भागवत. तो रोज हमें श्रवण करना है भागवत का, और एक भक्त भागवत से हमें सुनना है, और दोनों का सेवा करना है. तो पुस्तक भागवत का सेवा कैसे करेंगे? एक पुस्तक का सेवा कैसे होगा? टू कीप इट इन द शेल्फ एज इट इज? नो. पुस्तक का सेवा तब होगा जब आप शेल्फ से उसको निकालेंगे और नित्यम भागवत सेवया, रोज आप उसका अध्ययन करेंगे. स्टडी, नॉट रीड. यू मस्ट स्टडी. प्रभुपाद सेज यू मस्ट स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने पन्ने पढ़े. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी फॉर दैट डे. सम पीपल मे रीड फॉर 1 hour and they may not remember anything because they're just reading for the sake of reading. Some people may read maybe for 15 minutes, 20 minutes, but they have read quality. Whatever they have read, they have retained. इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा प्रभु जी बोल रहे क्वालिटी पे ध्यान देना है, 10 मिनट क्वालिटी वाला पढ़ाई करेंगे. नो, क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, because we are not in the stage where we can give that kind of a quality in the short duration of period that we decide for ourselves. तो निमित्त मतलब हमें नियम रूप से फॉर द फर्स्ट 2 लेवल्स आश्रय में आधा घंटा पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट 2 लेवल्स उपासका के लेवल तक आपको 1 hour पढ़ना चाहिए. उसके बाद चरणाश्रया हरिनाम दीक्षा के स्टेज में और ज्यादा पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली बिजनेस. नित्यम भागवत सेवया, और मंदिर में जाके भागवत का सेवा करना है. प्योर डिवोटी कौन है? प्योर डिवोटी मंदिर में श्रीला प्रभुपाद जी. तो जब आप मंदिर का सेवा करेंगे, किसका सेवा कर रहे हैं? आप गुरु का सेवा कर रहे हैं. तो बाकी सब कौन है? बाकी सब गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. जनक दास, दैट दास, दिस दास, दैट दासी, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद. सो whom are you serving? You are serving Srila Prabhupada. You are being channelized by the representatives of the spiritual master. So then, in the 4th section, Arjuna fearfully requests to see Krishna's original 200 form. तो ये भयभीत होके, मुझे नहीं चाहिए भाई ये विजन, मुझे नहीं देखना आपका विश्व रूप, आपके सौम्य रूपा. So he calls the 200 form as Saumya Rupa. Krishna also calls it as Saumya Rupa. That form which is very pleasing. ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण को देख के मोहित नहीं हो जाएगा, प्रसन्न नहीं हो जाएगा, इंक्लूडिंग द राक्षसस. तो जब पूतना देखी कृष्णा को,
तो उनको तो प्यार आ गया था. So she started, expressing love towards the baby Krishna. But then suddenly she thought, oh, I have been sent by Kamsa for a atrocious act, और मुझे वो execute करना है. Otherwise, everybody, every living entity is attracted to Krishna. There's no this one that a छोटा creamy kid attract नहीं होगा. Because the tendency is there. Because every jiva is a part and parcel of Krishna. So naturally, even magnet का आयरन का थोड़ा भी छोटा भी पीस रहेगा, मैग्नेट तो अट्रैक्ट कर ही लेगा. ऐसा नहीं कि बड़ा आयरन पीस रहना चाहिए तभी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा. छोटे छोटे टुकड़े भी, पाउडर भी, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि द टेंडेंसी ऑफ द आयरन, उस लोहे का वो टेंडेंसी है तो मैग्नेट को अट्रैक्ट होना, और मैग्नेट का टेंडेंसी है कि लोहे को अट्रैक्ट करना. तो दिस टेंडेंसी इज ऑलरेडी देयर. So, and then, so Arjuna goes through the phase where he first sees the universal form, and then he sees the four-handed form of Narayana, and then he again sees the Dvibhuja, Krishna, Shama Sundara, Muralidhara, Rupa, standing before him, the Saumya Rupa. So Arjuna's illusion is dispelled by hearing to Krishna. तो कृष्णा का वाणी सुन के अर्जुना का जो सम्मोह था वो मिट गया. अरे प्रभु जी, अर्जुन तो भाग्यशाली था, स्वयं कृष्ण भगवान उनको बोधन कर रहे हैं. लेकिन बोधन क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में अपने बारे में बता रहे हैं. So he's talking about Krishna. Krishna is talking, but Krishna is talking about Krishna. So what is the key here? It is not Krishna speaking. The key is the topic is about Krishna. So that can be spoken by the representative of Krishna also. गवर्नमेंट बोले या गवर्नमेंट सरकारी नौकर बोले, एक ही बात. अगर एक स्कीम आया है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, वो ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन है. सरकारी नौकर रिप्रेजेंटेटिव आके आपको बताएगा ये स्कीम निकला है, आप भाग लीजिए, वो भी वैलिड है. So Srila Prabhupada plays the role of the representative of the universal governance of the Supreme Lord. So, so basically he is hearing about Krishna. तो कृष्ण कथा सुनने से जो भ्रांति है, जो भ्रम है, जो सम्मोह है, जो माया के वश में हम झगड़ में आ चुके हैं, इससे हम पार हो सकते हैं. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मेरा माया दुरत्यया, आप इससे पार नहीं हो सकते. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. लेकिन आप मेरे शरण में जब आओगे, शरण में आने का मतलब क्या है? शरण में आने का मतलब है वाणी को सुनना और उसको अपने जिंदगी में उतारना. To apply the principles, not simply here. Do you know all the regulative principles? Do you know all the instructions of Prabhupada? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ. क्या आप फॉलो कर रहे हैं? जी नहीं. So what is the use of knowing? What is the use of knowledge which is not applied in our life? तो उस आदमी और एक अनपढ़ आदमी में क्या डिफरेंस है? इसको सब मालूम नहीं है, अप्लाई नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट तो जीरो होगा. इसको कुछ भी नहीं मालूम है तो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तो रिजल्ट जीरो होगा. तो चाहे वो पढ़ाई ना करके फेल हो जाए, जीरो मिलेगा, या फिर पढ़ाई करके इज नॉट अप्लाइंग इट, इज नॉट राइटिंग द एग्जाम एट ऑल, क्या उसका रिजल्ट वही है, जीरो. सो अर्जुना कुड सी द यूनिवर्सल फॉर्म only after he was bestowed divine vision by the grace of the Lord. Again, he got divine vision. दिव्य चक्षुषा किसने दिया? स्वयं भगवान ने दिया. तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, अर्जुन तो भक्त है, द टॉप मोस्ट फॉर्म, अभी हमने डिस्कस किया, टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ कृष्णा, द टू-हैंडेड फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म, he is able to see. Then why for universal form, which is not the most powerful form of Krishna, is requiring that he should have दिव्य चक्षुष. तो इसके लिए दिव्य चक्षुष क्यों चाहिए? भक्त तो अपने भगवान को सीधे सीधे देख रहे हैं, तो अब क्या जरूरत पड़ गया दिव्य चक्षु का? दिव्य चक्षुष
रिक्वायरमेंट। क्यों आया? क्योंकि अर्जुना भक्त है। अगर आप उसको दिव्य चक्षुष नहीं देंगे, ही विल नॉट सी द सेकेंडरी एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा। वो तो पूर्ण रूप में ही देखेगा हमेशा। जैसे कि यशोदा माता हमेशा कृष्णा को अपने पुत्र के रूप में देखा। उनको भी विश्व रूप का दर्शन हुआ। कब हुआ? जब वो विभ्रांत हो गई, तब वो कर पाई। So she had to come down to a different level. Then she could see the universal form. But of course, that was in a different level. That universal form was a much higher universal form. What universal form Krishna is Arjuna is seeing now is a technical universal form. जहाँ जिसके वजह से ब्रह्मांड के सारे कार्य चल रहे हैं, due to which all the functions of the material world is going on. And what Duryodhana saw was even more lower form. It was a partial form of this universal form. तो कृष्णा लोग को देख के अपना विश्व रूप दर्शन दे रहे हैं। सो अर्जुन को तो बोल सकते हैं दिव्य, तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो दिव्य चक्षुष चाहिए, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक भक्ति का चक्षुष है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना। तो ये दिव्य चक्षु ऑलरेडी उसके पास है, लेकिन इससे वो क्या देखेगा? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत हमेशा अपने हृदय में कृष्ण भगवान को देख सकते हैं। प्रेम के अंजन लगा के, प्रेम भक्ति करके क्या देखेंगे? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो किसका रूप देखेंगे? श्याम सुंदर का रूप, द्विभुज नारायण, द्विभुज कृष्ण मुरलीधर, उसका रूप वो देखेंगे। दे आर ऑलवेज सीइंग द transcendental topmost form of the Lord. So that is the answer for the question when people ask why Arjuna required Divya Chakshusha when he is going to see a lower form of Krishna, and he is already seeing the topmost form of Krishna without so-called divine vision. Actually, he is already having divine vision of bhakti. So Yashoda का भी यही हाल है, वात्सल्य भक्ति। वात्सल्य भक्ति से वो कृष्ण को एक शिशु बालक की तरह देख रही है। वो अगर उस दृष्टि से नहीं देखेगी तो भगवान, मतलब उस समय जब भ्रांत हुआ था उसको, तो उसमें तो भगवान को प्रार्थना करने लगी है, मैं क्या देख रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। तो इस स्थिति में वो फिर वापस कृष्ण को कभी पुत्र के रूप में देख सकती थी? कभी नहीं देख सकती। तो योग माया समटाइम्स works on the devotees to keep them in the top platform. अब नीचे मत आइए, वहीं पे रहिए। अब नीचे आएंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। So then, so in the shloka between 5 to 8, Krishna only speaks of his universal form. पांचवें श्लोका से 8वें श्लोका तक अगले क्लास में हम देखेंगे कृष्णा अपने विश्व रूप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। So before the show, introduction is being given, and then shloka number 9 onwards, Krishna shows his universal form after bestowing divine vision to Arjuna. So as super soul, Krishna controls all cosmic events according to his will. तो ब्रह्मांड में सारे गतिविधियों का सूत्रधार जो डोरी है किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। और कैसे चला रहे उसको? तो through the agency of Yogamaya, under the supervision of Krishna, it is happening. Material world through the agency of Mahamaya, under the supervision of Krishna. And how is it going on? By his will. तो कृष्ण के इच्छा के अनुसार सब कुछ चल रहा है। As time, Krishna is pushing all things towards destruction. So Kala Rupa, एक तो सौम्य रूपा, द्विभुज रूपा, काल रूपा, विश्व रूपा, जो इट्स लीडिंग एवरीथिंग टू डिस्ट्रक्शन। उस यूनिवर्सल फॉर्म में अर्जुन क्या देख रहा है? सब कुछ नष्ट हो रहा है, तो सब कुछ तहस नहस हो रहा है, इसलिए भयभीत हो गया। So the most intimate feature of absolute truth is the two-armed form of Krishna. So vadanti tat-tatvasvidam ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। So Arjuna is seeing what form? Bhagavan iti sabdyate, the topmost aspect of the Supreme Lord, the absolute truth, परम सत्य का जो सबसे ऊंचा अंडरस्टैंडिंग है, उसका विजन
भक्त रखते हैं भगवान का रूप का, एंड दे नो परमात्मा एंड ब्रह्मन आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णास एनर्जीज एक्सपेंशंस. So, ete chamsha kala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is Supreme Lord Himself. Ete cha amsha kala pumsa. बाकी सब विष्णु अवतार, महाविष्णु से लेके नीचे स्तर के सारे अवतार कृष्णा से आ रहा है. तो नीचे स्तर के अवतार तो कृष्णा के अवतार के एक एक्सपेंशन है. तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये किसने बताया? वेद व्यास जी ने. भागवतम में हमें इस श्लोक मिलेगा. इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे. As simple as saying Indra Ari Vyakulam Loke. The world is troubled by Indra Ari, demons. So Indra Ari Vyakulam Loke. So that is one way of looking at. Another way of looking at Indra Ari Vyakulam. He is come to create fear in Indra Ari, in the enemies of Indra. That means Rakshasas, demons. तो मृदयंती युगे युगे, मृदयंती भक्तों को सांत्वना देखने के लिए युगे युगे आ रहे हैं. तो ये कौन सा श्लोक मैच करता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो इन भागवतम this shloka is there. This ete chamsha kala pumsa, matching with that, there is Krishna is telling Sambhavami Atma Maya. Then he is telling, I come for protection of my devotees mainly and destruction of the demons through my various energies. काफी है. And also for re-establishing dharma. Kurukshetra Yuddha ka, what is the final goal? Krishna is wanting Paritranaya Sadhunam. Mrudayanti. Bhakto ka Santvana. Mruda. Mruda matlab to give them comfort. Then Indra Ari Vyakulam. तो लोक में इंद्र हरि है, उनको व्याकुल करने के लिए आए हैं. विनाशाय च दुष्कृताम. तो ये करने से क्या होगा? तो धर्म संस्थापन आता है. कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या, व्हाट इज द रिजल्ट वांटेड? धर्म का संस्थापना होना चाहिए. धर्म का संस्थापना होना चाहिए. तो एक धार्मिक राजा, राजा ऋषि को राज्यभार, राष्ट्रभार को संभालना चाहिए. एंड कृष्ण आइडेंटिफाइड हु दिस qualified person is, that is Yudhishthira and his brothers. So Krishna always comes to restore the order in the disordered material world, which happens frequently, especially under the influence of Kali Yuga in the coming days. So the two-armed form is called Saumya Rupa, and the most intimate form of the absolute truth, the two-armed form, can be realized and seen only through the mercy of Krishna and by devotional service. Mercy of Krishna तो है, लेकिन उसके लिए हमें devotional service भी करना चाहिए. हाथ में हाथ लगा के बैठेंगे तो Krishna will not bestow this mercy on us. But he is transcendental autocrat. He can give this mercy to anyone. Like for example, Kanakadasa. Of course, if you go by his previous childhood history, his parents always used to pray for him. वो भक्त बने, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया था. तो इसलिए कनकदास भी नहीं जानते थे, तत्क्षण वो भक्त बन गए. So what are the other methods like studying Vedas, serious austerities, penances, charity worship? इनसे हमें भगवान की प्रेम भक्ति मिलेगा नहीं. We will not get prema bhakti. We will be able to get the other types of bhakti, but prema bhakti to manifest nahi hoga. So in the last two shlokas of chapter 11, 54th shloka, Krishna talks and glorifies bhakti. That is the conclusion of this chapter. You must see this form, and for that bhakti is required. That is 200 form. In 55th shloka, he talks about the essence of Bhagavad Gita, the formula to approach the Supreme. तो भगवान को कैसे हम अप्रोच करें, इसका फॉर्मूला 55th श्लोका में हमें मिलेगा. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनन्य भक्ति कृष्णा बताते हैं 55वें श्लोका में, एंड एंड्स दैट चैप्टर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. वी विल जॉइन अगेन टुमारो एंड स्टार्ट विद श्लोका नंबर 1 ऑफ चैप्टर 11. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र